Now I invite Dr. Tapti Roy Yadav, who is a seasoned developmental therapist and practicing psychologist with over 25 years of experience in counseling, education, and behavioral therapy. She is currently associated with IPS Academy as a wellness counselor and assistant professor of psychology. A dynamic professional, she has also worked extensively in the field of organizational psychology, relationship management, psychometrics, and soft skills training. Her compassionate approach and diverse expertise make her a respected voice in the field of grief and bereavement counseling. Beyond her clinical practice, Dr. Yadav is actively involved in community initiatives, including serving as a joint secretary of the Ataxia Awareness Society. We are also glad to inform you all that Dr. Tapti has been kind enough to be associated with IHNO since December and conducts support group meeting for patients and caregivers on every third Friday of every month. We are honored to have her share her insights and experiences with us today. We welcome you, ma'am. Please. Good morning to all of you. And as Pallav ma'am and Chalja ma'am have underlined that I'll be talking about grief, right? So grief हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इट्स लाइक दुख. हम दुख के बारे में थोड़े बाद में बात करें, पहले खुशियों से मिलने ऐसा मुझे लगता है. तो अब लुक एट द पर्सन हु सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू. How long could you look? I asked you to look at the person sitting next to you, and what I'm observing is nobody looked more than fraction of seconds. So how long can you look? चलो try लेते हैं. Look at the person next to you and keep looking until I say no. Am I audible till the last? सिर्फ देखते रहना मुश्किल होता है ना? दोस्त हो या दुश्मन, सिर्फ देखते रहना मुश्किल होता है. दोस्त हो तो क्या होता है? You keep smiling, है ना? And if it is someone whom you do not like, you will start frowning. You cannot look at somebody just like that. न्यूट्रल रह करके हम किसी का चेहरा कभी नहीं देख पाते हैं. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपना चेहरा याद नहीं कर सकते. नाउ क्लोज योर आइज, ट्राई टू रिकॉल हाउ यू लुक. क्लोज योर आइज एंड इमेजिन योरसेल्फ हाउ यू लुक. Fine. And I'm sure you must have recalled a picture of yours जो किसी इवेंट में आपने क्लिक किया था, और मे बी दिस मॉर्निंग जब आपने खुद को शीशे में देखा था तो रिफ्लेक्शन याद है. आप कैसे दिखते हैं आपको याद नहीं है, राइट? हमारी जो मेमोरी है ना, ब्रेन्स जो वो वाली मेमोरी कैप्चर करती नहीं है. स्कीमेटिक मेमोरी कितनी भी अच्छी हो, आप अपनी शक्ल याद नहीं रखते क्योंकि आप देखा हुआ याद रखते हैं, राइट? Grief is something very similar. Grief is like happiness. It doesn't stay forever unless you keep hold of it. तो जो अच्छी वाली मेमोरी होती है उसे भी हम ऐसे होल्ड करके रखते हैं ना, very close to us. So grief is something very similar. Now before I start with the presentation, I think it's a good idea that I make you play a game first, so that you understand the concept in a better way. We have balloons here. We'll be giving balloons to each of you, and also a pin, right? Balloons are meant to blow, right? Pin you keep with you till the time I say what is to be done with it, right? Those participants who are here wondering कि balloon कैसे blow करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं. बलून ब्लो करना है, उसको फुलाना है, फुलाएं ना फुलाएं, अभी फुलाएं, लोग क्या सोचेंगे, अभी हमारा मन नहीं है तो अभी नहीं फुलाएंगे, ऐसा कुछ भी अगर ख्याल आ रहा है तो मैं बता दूं, अगर आप बलून नहीं फुलाएंगे तो आप खुशी का एक मौका गवा देंगे.
ब्लो द बलून, जितना आप फुला सकते हैं, फोड़ मत देना बस. मेक इट टाइट, इट शुड बी टाइटली फिल्ड विद एयर. द साइज डजंट मैटर, जितना आप फुला सकते हो. आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो मत करना. कुछ बलून्स वैसे ही लीक होते हैं तो दूसरी ले लेना इन केस somebody has gotten a damaged piece. And once you are done, just raise your balloon ऊपर थोड़ा सा so that I can see that everybody is through with the task. Make sure you have a balloon and a pin both. Blow the balloon to its maximum capacity. Do not burst it. It should be tightly filled. That's it. Everybody done with blow the balloon exercise? Everybody is done. On the count of 3, 1, 2 and 3, everybody raise your balloon to the height, to whatever height you can lift your hand. Each of you hold the balloon high. Can each of you see each other's colors? Just take a turn around. पीछे मुड़ के देख सकते हो. देखो सब कलरफुल. अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? Okay. Now make use of the pin. How would you like to use the pin? 1, 2 and 3. Happy? Coincidentally, I did not ask you to use the pin on the balloon. I just asked you to use the pin. आप उसको कपड़े पे भी लगा सकते थे, आप उसको कुछ भी कर सकते थे. बलून फोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी. बट फोड़ कर अच्छा लगा? फैलाते समय अच्छा लगा था? नहीं? Some people enjoyed blowing it, somebody enjoyed bursting it. Right? This is how emotion plays a role in your life. Sometimes you are elated when you are happy. अंदर मन में जब खुशियाँ बहुत भरी भरी सी रहती हैं तब ये ऐसे बलून फुलाने जैसा स्टेट रहता है आपके दिमाग का. आपका इमोशनल स्टेट जो होता है वो खुशियों से भरा हुआ होता है. ग्रीफ कम्स एज अ सडन पिन, राइट? तो वो कुदरत ना, आप बहुत खुश हैं, आपको पूरा मौका मिला, आपने मैक्सिमम एयर जितना फिल कर सकते थे आप अपने मन में उतना आपने फिल किया. आप खुशियों से सराबों ऊपर की ओर गए एंड सडनली समबडी फिल्स दैट पिन. कोई और ये करता. नाउ यू गो टू योर चाइल्डहुड, जब आप बलून फुलाते थे और आपके साथ खेलने वाले दूसरे बच्चे आके उसको पिन कर देते थे या बर्स्ट कर देते थे, कि गलती से ही फूट जाता था किसी से. व्हाट इज द नेचुरल रिएक्शन ऑफ अ किड? बलून अगर फूट जाए तो बच्चों का नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट नंबर 1 रिएक्शन क्राई. 3 साल तक के बच्चे, मे बी 4 साल तक के बच्चे, somebody burst the balloon, they start crying. 4 to 7 एंगर, तुमने मेरा बलून क्यों फोड़ा. 7 to 12 मुझको दूसरी ला कर दो. 12 to 15 कल से तू मेरा दोस्त नहीं. 15 to 18 क्या बलून बलून करते रहते हो. 18 एंड ऑनवर्ड्स बलून फुलाना बच्चों का गेम है. ऐसे स्टेजेस होते हैं ना बलून के. इमोशंस के बिल्कुल ऐसे ही स्टेजेस होते हैं. ग्रीफ के स्टेजेस भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं. आपके पास एक खुशियों भरा संसार था, किसी भी वजह से कोइंसिडेंटली वो खुशियाँ बर्स्ट हो गई. अब आपका जो पहला वाला है रिएक्शन, गुस्सा होना. व्हेनेवर वी लूज अ फैमिली मेम्बर और समबडी वेरी क्लोज टू अस, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम क्राइंग. And if you do not cry, people around you would make you cry because you are not able to handle that new situation. I remember, I'm also a relationship counselor and also a marital counselor, so I remember a girl asking me very innocently,
some 23-25-year-old baby. Her marriage was getting fixed, and she had to, prepare for marriage. So she came for premarital counseling, and the question that she asked, I would remember that question forever in my life probably. Madam, am I expected to cry? Why? You're getting married, you're happy, why should you cry? नहीं, आज नहीं, विदाई हो रही होगी तब। मैंने कहा विदाई हो रही होती तो तुमको रोना आएगा। नहीं, मुझे आता नहीं है ना। तो मुझे सब लोग घर पे ऐसा बता रहे हैं कि तुमको रोना चाहिए, पहला, तुमको रोना पड़ेगा, दूसरा। फिर ये अपनी मम्मी के पास गई पूछने कि मम्मा मुझे तो रोना आता नहीं है, एंड बचपन से तो आप लोग यही सिखा रहे हो कि रोने की कोई बात नहीं होती है ना, व्हाई डू आई क्राई? सो द मदर ट्राई टू काउंसिल हर, अगर तुम्हें रोना ना आए, यू प्रिटेंड दैट यू आर क्राइंग, बट यू गॉट टू क्राई. So this girl was very confused. Why everybody is so insistent that I should cry? Why can't they, send me off happily? मुस्कुरा के जाऊँगी तो क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उसे समझाया कि पहले के दिनों में शादी पता है पहले बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी, तो ना जिस उम्र में शादी होती थी उस उम्र में जाके वहाँ काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा वो सेकेंडरी. उस एज में इट वॉज अ वेरी टेंडर एज, पीपल यूज्ड टू गेट मैरिड एट 10-year-old 12-year-old. उस समय स्ट्रेंजर्स के साथ चले जाना अपने आप में वॉज वेरी ऐसा ट्रॉमेटिक, तो रोना आता था. अब 15 साल की लड़की तो नहीं शादी कर रही है ना, 25 साल की लड़की शादी कर रही है जो 3 साल से उस लड़के को जानती है, तो उसे पता है क्या करना है, उसे पता है कहाँ जा रही है, ठीक है. और अगर जा भी रही है तो शादी के बाद 6 महीने तक चलती है, तो यू आर नो मोर गोइंग टू अ स्ट्रेंजर्स प्लेस बिकॉज एट द एज ऑफ 25 यू आर एबल टू comprehend where you are going and what is to be expected. Anticipations are all at very high degree. तो unless and until you are very scared कि मैं वहाँ पे अपने आप को खुद को कैसे हैंडल करूँगी, तो आपको रोना आएगा out of fear, या फिर you are so emotionally attached to your family that you are scared of leaving that family, तो आपको रोना आएगा. Otherwise it has become a social ritual. कायदे से बड़ा नॉन रिलेवेंट सा है ना, इरेलेवेंट रिचुअली करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट हेल्प्स इफ़ यू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम crying, लूजिंग योर एस्टैब्लिश्ड जो भी आपका घर है, फैमिली है, सब कुछ मेंटेन्ड है ना, द बॉन्ड इज एस्टैब्लिश्ड विद योर फैमिली मेम्बर्स, सो यू आर बेसिकली ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दैट comfort zone. And if you cry, a lot of toxins are drained out. So you are rejuvenated with a new kind of energy to get adjusted well. And that is why when you lose a family member or anyone who is close or anybody for that matter, even when you lose a doll or a toy, just cry. Because grief is not only about losing a person to death. Grief is also losing someone to situations, circumstances. Maybe you are in a very good relationship for a few years and then you break away, and it doesn't have to be girlfriend-boyfriend relationship. You people can be a very good friend, and eventually you know that you would not be able to maintain that friendship. You cannot rush to the nearest coffee center at 12:30 a.m. night because now situations have changed. The other person has now moved to Canada. You people can still enjoy coffee together in this era of internet. तुम वहाँ से ज़ूम पे क्लिक करो, मैं यहाँ से ज़ूम पे क्लिक करूँ, तुम अपनी कॉफ़ी उठाओ, मैं अपनी कॉफ़ी उठाऊँ, एंड वी कैन गॉसिप द सेम वे, बट इट्स नेवर द सेम. So a part of friendship, a part of comfort, a part of love, a part of sharing, that enthusiasm of being together is lost. And sometimes I come across people who are 50 plus age sharing stories like, he was my very good friend and we had such a fun time together. उतना मज़ा ना पिक्चर देखते हुए फिर कभी आया ही नहीं. So you're holding on to those memories. I bet that person must have enjoyed more than what he had enjoyed with the other person, with some other people, but he doesn't want to let go of that very feeling and obsession कि मैं तो बस उसी समय सबसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो उससे ज़्यादा खुश होना ही नहीं चाहते. ग्रीफ में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि मैं आज इतना दुखी हूँ और मैं इससे ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहता. अगर ग्रीफ को सही टाइम पे नहीं
ट्रीट किया तो आप उससे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ग्रीफ जब भी आपके लाइफ में एंटर करे, यू हैव टू रिमेंबर क्राइंग। 3 साल का बच्चा इज़ द फर्स्ट रिएक्शन। वो क्यों रो पाता है? क्योंकि उसके पास कोई हर्डल नहीं है, रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए का हर्डल नहीं है। सो इफ देर इज for some reason the grief has entered your life, if you encounter grief ever, the first reaction should be cry. Second is, क्या था, तुमने क्यों मेरा गुब्बारा फोड़ा, है ना? तो अब कुछ अनहोनी हो गई है तो आप ये सवाल किससे करेंगे? नेचुरली पीपल they tend to ask God Almighty कि मैं ही क्यों। फिर उसके बाद दूसरा काम हो तो सवाल ही नहीं उठता, because you cannot replace. So here you start getting mature. So that level of maturity is required if you are going through a process of grief, right? So crying allowed है, अपने आप से झगड़ा करना तो नहीं अलाउड है, बट भगवान जी से झगड़ा करना इज अलाउड। यू कैन आस्क द यूनिवर्स व्हाई दिस हैज हैपेंड टू मी, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क इट अलाउड। अमिताभ बच्चन की पिक्चर कितने लोग देखते हैं? कितने लोगों ने देखी है? नहीं भी देखी होगी तो रील्स तो देखते ही हैं आजकल। तो रील्स में तो अमिताभ बच्चन जी आते ही हैं बोलते हुए, आज तो बहुत खुश हो गए तुम, है ना? तो कभी कभी गॉड ऑलमाइटी को खुश किया जा सकता है भाई, जस्ट विजिटिंग, इमेजिनिंग that you're in conversation with God, because if you say if you name it as like Bhagwan Shiv, you name it as Allah, you name it as you go to church, you go to masjid, doesn't matter. There is some supreme power, right, which has decided what would happen in your life, and if you're not liking that, then you'll have to question. Sometimes you write a very, all of your students कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छे से लिख कर आए आंसर शीट में और फिर नंबर उतना अच्छा नहीं आया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड दिस? लिखा बहुत अच्छा, नंबर अच्छा नहीं आया। डू यू रियलाइज दैट्स अ काइंड ऑफ ग्रीफ, जो अब आप घर जाके सल्व करते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। फिर आपको कोई तो ऐसा रास्ता बताता है ना कि जाके आंसर शीट खुलवा लो, जाके टीचर से बात कर लो। तो आप क्या जाके टीचर से ऐसे पूछते कि दिया क्यों नहीं नंबर इसमें? ऐसा तो नहीं बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं बोलते ना कभी कि मेरे इसमें नंबर क्यों नहीं दिया, अभी नंबर दो। और फिर जब नंबर टीचर नहीं दे रहे तो आप उनसे लड़ाई कर लो। ऐसा होता है, कभी कभी होता है। वो जो अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल है भगवान जी के पास जाने का, इट्स लाइक ईदर यू फुलफिल माई विश और आई डिमोलिश योर आइडल, है ना? तो ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? वी कैन आस्क दैट क्वेश्चन वेरी पोलाइटली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम टीचर से पूछते हैं, वैसे ही हम भगवान से भी पूछ सकते हैं कि क्या किया मैंने, प्रॉब्लम क्या है पता है उसमें। सेकंड वाली फेज में अगर आप उससे जल्दी ही बाहर नहीं आए तो आप सेल्फ ब्लेम मोड में चले जाते हैं, विच इज़ इवन डेंजरस एंड रिस्कियर दैन ग्रीविंग फॉर लॉन्ग टाइम। सो ग्रीफ हैज़ मल्टी डायमेंशन। ग्रीफ एज अ ग्रीफ नहीं होता है। पिछला वाला स्लाइड पढ़ा था सबने, should I put it again? When we say grief counseling, it's a process. Counseling by itself is a process of talk therapy. So grief counseling is a therapy we offer to people who have suffered loss of someone. By definition, it's about someone. By observation, I can tell you, जिसको गार्डनिंग का शौक है उसका गुलाब का फूल मिट्टू चोच मार के चला जाता है, वो 2 दिन तक दुखी रहता है। उसके पेट ने 2 दिन खाना नहीं खाया, सम पेट लवर, वो 2 दिन तक दुखी रहता है। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, वो 2 महीने तक दुखी रहता है। डिपेंड करता है, 2 साल तक भी रहते हैं कभी कभी दुखी। सो कितने दिन तक कौन कब दुखी रहेगा? सो दैट स्टेज, इफ यू कम टू अ काउंसलर ड्यूरिंग दैट फेज, ग्रीफ इज लाइक दैट पिन इन द बलून. Right at that minute, if you and approach someone and get a counselor or get counseling from some trusted member of your family, you will overcome the situation. ठीक है? मल्टी डायमेंशनल ग्रिफ समझाने के पहले मैं आपको एक दूसरा एक्सरसाइज बताती हूँ। सबके पास पिन अभी भी है? बलून खत्म हो गए होंगे ना, बलून और ले लो। जिन्होंने संभाल के रखे
संभाल के रखना. I'll ask the same people or maybe some other students can just volunteer. Distribute the balloon. ले जाओ, सबको दे दो. Somebody come here and distribute the balloon. सिर्फ बलून देना, अभी पिन की जरूरत नहीं है. Somebody already started blowing it. It's conditional. Everybody got one? Each of you have one balloon with you? Okay. Also the pin with you. Now I am requesting you to pierce the pin in the balloon before you blow it. अपने बलून में उस पिन से एक बार ऐसे पियर्स करो ब्लो करने के पहले. उससे तो छेद हो जाएगा. करो. ब्लो नहीं करना है. पिन से पहले उसको एक पियर्स करो फिर ब्लो करो. और देखते हैं हम कितने दूर तक वो ब्लो हो पाता है. पियर्स द बलून फर्स्ट एंड देन ब्लो. ईच ऑफ यू पियर्स द बलून फर्स्ट. छोटा सा एक पिन उसमें करो और फिर उसको ब्लो करो. हवा भरो उसमें. बिल्कुल नहीं भरेगा ऐसा नहीं है, भरता है. या पियर्स एकदम टॉप पे टिप पे क्या, फिर भी करो, आएगा. कोशिश करो. Just try it once so that I can explain what it is. आपने पियर्स किया था उसको? है? अच्छा, इसमें क्या? अच्छा, जितने लोग उसमें हवा भर पाए थोड़ा बलून ऐसे ऊपर करें प्लीज़. हाँ, किसी का बहुत छोटा सा है, किसी का फट गया, किसी का बड़ा सा है. somebody is still struggling, somebody just could not. Okay, now the difference is see this is a balloon, है ना? Somebody must have pierced it here. Somebody must have pierced it very close to the collar, है ना? ऐसे ही किया ना? तो जिसने कॉलर में pierce किया था उसका काफ़ी देर तक हवा रिटेन हो पा रहा है. जिसने बिल्कुल नीचे किया था बॉटम पे उनका हवा रिटेन कर ही नहीं पाया. जिसने बीच में कहीं किया होगा उसका धीरे धीरे रिस रहा होगा. अभी पता चल रहा है आपको, है ना? अगेन दिस इज वेरी सिमिलर टू इमोशंस. अगर आपके दिल में कोई गम है और दिल मतलब थोड़ा सा अगर पंक्चर्ड है तो क्या होता है, उसमें से धीरे धीरे हवा निकल रही है ना, तो धीरे धीरे वो इमोशंस भी बाहर निकलता जाता है. लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं. क्या कहते हैं? इसका दिल बड़ा कमज़ोर है, रोता रहता है. सो दैट लीकिंग एयर इज बेसिकली लीकिंग इमोशन. सो एनीबडी हु हैज़ pierced that hole at the very beginning, मतलब दर्द हुआ नहीं, पहले ही रोना चालू हो गया, वो उनके उसमें दिल में जो है इतना कमज़ोर है कि हवा रिटेन ही नहीं कर पाता है. किसी किसी के कॉलर तक रहता है तो काफ़ी सारा भरने के बाद वो रिलीज़ होना शुरू होता है. जिनके भी बलून में हवा पियर्स करने के बाद भी आप भर पाए हैं उसको अब आप पिन पियर्स करो. फट जाएगा कि नहीं? पियर्स करने के बाद भी जिनके बलून्स में हवा रिटेन्ड है अगर उसको पियर्स करेंगे तो वो भी फटेगा. अच्छा क्या है, एज फार एज द बैड फीलिंग और सैडनेस इज कंसर्न, इट्स गुड टू लेट इट रिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो आप ब्लो करते रहो और नीचे से वो हवा रिलीज़ होता रहे तो आपकी ज़िंदगी में जितना भी दर्द आएगा वो सब रिलीज़ होता जाएगा. Now you should have a question कि ये सैडनेस के लिए तो अच्छा है कि सैडनेस रिलीज होती जाएगी. What about happiness? सेम, रिलीज होती जाएगी. बहुत देर तक आप उसमें हैप्पीनेस भी कंटेंट नहीं कर पा रहे थे ना, कुछ चुप गया तो इकट्ठे ही निकल गया. अभी जिनके उसमें एयर है, बस नहीं हुआ है, होल भी है,
उसमें आप पिन पेयर्स करेंगे ना तब भी वो बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन है ना वो रिलीज्ड है, तो उसमें पिन ऐसे बर्स्ट नहीं करेगा, वो पिन उसको पुश करेगा बस। तो आपका जो इमोशनल स्टेटस होना चाहिए, जो मन की स्थिति होनी चाहिए, मनस्थिति जो होनी चाहिए, दैट शुड बी लाइक अ बलून with a small hole which can be filled in, emotion should get released. Doesn't matter if it's happiness or sadness, if you keep the emotion too close to you, too tightened for too long a time, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होती हैं उसके बस्ट हो जाने की, ठीक है। कुछ बलून्स आजकल जो बर्थडे पार्टीज़ में आपने देखे हैं सजा करके घंटों दिनों तक रखा रहता है, उसे कोई हाथ नहीं लगाता, बट क्या वो हमेशा वैसे रखा रहता है? नहीं, इवेंचुअली इट विल ईदर गेट सैगेंड या फिर किसी चीज़ से टकरा के वो बस्ट हो जाएगा, है ना। तो दैट इज़ लाइफ। somebody in this whole world, somebody who is around you, some people are generally not exploring sadness, or they are not confronting some challenges every day. They are very happy go lucky type soul. उनको बहुत दुख ना कभी मिला है ना उनको बहुत दुख कभी होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हवा हमेशा वैसे ही भरा रहता है, किसी न किसी तरह से वो बलून किसी न किसी दिन तो ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इन द मिड ऑफ द सेंटेंसेस। तो जब ये हो उसके बाद का जो प्रोसेस है, जिसके साथ हो गया ना, इट्स गॉन। अभी अगर सब बहुत सारे बलून वहाँ पे बर्स्ट हुए होंगे, एंड इफ़ आई आस्क समबडी टू गैदर ऑल ऑफ इट एंड देन आई आस्क यू आपका वाला चुनो, तो यू वुड नॉट रिमेंबर विच वन वॉज योर्स। लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जो बर्स्ट बलून की तरह से तब तक ही दुख देते हैं जब तक वो आपके या तो हाथ में या अभी फटे हैं या अभी दिख रहे हैं। फिर आप काम पे लग जाते हैं ना तो धीरे धीरे वो फेड अवे होता है। बट एज आई टोल्ड यू, a 50-year-old person may still get stuck to that 15-year-old experience that I had the best experience of watching that movie. That person never was very happy like that again in my life, discounting all the happiness that he must have, encountered in the way. ठीक है? So this is how grief counseling works. I'm Dr. Tapti Roy Yadav. This is my email ID tapti.yadav@ipsacademy.org. If you want to contact me, you can write over to this ID. I'm there to help you. Thank you.